Hello everyone, today we are doing MEG 14 block number 4 short stories part 1 यूनिट 2 बर्थडे। ये सेकंड शॉर्ट स्टोरी हम कर रहे हैं, इससे पहले हमने सॉल्ट कर रखी है। तो ये जो बर्थडे शॉर्ट स्टोरी है लिखी गई है वाकम मोहम्मद बशीर के द्वारा। लेट अस स्टार्ट नाउ। This is about an individual who cannot compromise with society and the state in diluting human qualities and ideals. This story takes place probably around 1942 to 43. The narrator, who is a freedom fighter, a revolutionary, and a creative artist of very high achievements, finds it difficult to eat a square meal even on his birthday. Not only that, on that particular day, he is preyed upon by the landlord and the hotel keeper for defaulting payments. He is let down by a friend who has promised him lunch. He is not even offered tea by his acquaintance, who goes on drinking tea in front of him. He is harassed by CID and the deputy police commissioner. Yet his incurable uh, optimism buoys ups the author. He is inspired by the innate goodness of the servant boy who loans him to Anas, and the innocent idealism and principled zeal of the youth leader Gangadhar. The narrator looks at the picture of a man standing erect against the backdrop of a city filled with skyscrapers in the horizon, though he is bound down to the earth by chains. But he is looking up in hope, even in an apparently hopeless condition. The caption of the picture runs: although bound to the earth by chains, he looks beyond time and space to the splendid progress to come. This seems to be the message of the story. This story is an example of stark realism, and its tone is set up such from the very opening as the protagonist uh, unravel, unravels the details of a day's happenings in the confessional mode. The turn at the end of the story is wrought by the contrast of the highly idealist hero going to sleep on an empty stomach on his birthday, when the mediocre, the middle class people who are going about minding their petty, selfish lives gather together, making merry, smoking cigarettes. The the pianancy the reader feels at the end stings like cigarette smoke in the eye. नाउ मैं आपको थोड़ा इसके वर्ड मीनिंग्स बताती हूँ, उसके बाद इसके हिंदी में एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, स्क्वायर मील यूज़ किया गया ना। स्क्वायर मील का मतलब होता है बैलेंस्ड डाइट, सेटिस्फाइंग डाइट। जैसे हम लोग 3 बार खाना खाते हैं और वो एक बैलेंस्ड डाइट मील होने चाहिए, उसको हम 3 स्क्वायर मील्स ऐसे करके बोलते हैं। प्रेड अपॉन होता है टू हर्ट और टू डिसीव, है ना। ही इज़ प्रेड अपॉन बाय द लैंडलॉर्ड, मतलब उसको जो है वो हर्ट किया गया किसी तरह से, उसको कुछ बोला गया शब्दों के द्वारा। फिर है डिफ़ॉल्ट होता है फेल टू एग्रीमेंट, मतलब उसने अपने लैंडलॉर्ड को बोला होगा ना कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, एग्रीमेंट होगा उनके बीच में। होटल कीपर को बोला होगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो पैसे नहीं दे पाया। हैरेस तो आपको सबको पता ही है, परेशान करना। इनक्यूरेबल होता है दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, है ना। तो मतलब इनक्यूरेबल ऑप्टिमिज्म की बात की गई है, मीन्स उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, ठीक है। उसके बाद है बॉयज़ अप का मतलब होता है इंस्पायर करना, है ना। तो जो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने उसको इंस्पायर किया ऑथर को, है ना। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव ही रहा। इननेट गुडनेस होता है, मीन्स इननेट कभी ना ख़त्म होने वाली। ओके, बैकड्रॉप्स ऑफ द सिटी, ये तो पता ही है। ओके, नाउ इसके बाद आ जाता है अनरेवल होता है स्मूथ करना या अंडू करना, बोलते हैं ना, जैसे कि धागे उधेड़ना, मतलब बताना ना। प्रोटेक्शनिस्ट अनरेवल्स द डिटेल्स ऑफ अ डेज हैपनिंग इन द कन्वेंशनल, मतलब वो जो है प्रोटेक्शनिस्ट जो है वो बताता है हैपनिंग्स जो जो हुआ। अभी है रॉट, समथिंग टू हैपन,
मतलब स्टोरी इज wrought by the contrast of the highly idealist hero going to sleep on an empty stomach. मतलब कंक्लूड ऐसे जो है स्टोरी का अंत हो गया, स्टोरी की समाप्ति इससे हुई, ठीक है. माइंडिंग, माइंडिंग होता है टेक केयर करना. गोइंग अबाउट होता है आपका कैरी ऑन करना. कैरी ऑन मतलब जो मीडियोकर लोग थे वो गोइंग वो जो है अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी थे. जैसे कि मैरी मेकिंग में खुश खुश थे वो लोग, स्मोक कर रहे थे और अपनी सेल्फिश जैसी उनकी ज़िंदगी चल रही थी, वो किसी के बारे में सोच नहीं रहे थे, ठीक है. ओके, फिर होता है पाइनेंसी. पाइनेंसी होता है सैडनेस. द पाइनेंसी द रीडर फील्स एट द एंड, मतलब बहुत ही उदास हो गया वो एंड में. उसको ऐसा लगा जैसे कि सिगरेट जो है उसकी आंखों में, सिगरेट स्मोक जो है उसकी आंखों में जा रही है. उसकी आंखें मतलब एकदम से कैसे जल जैसी जाती है ना, वैसे उसको फीलिंग हो रही थी, ठीक है. अभी मैं एक बार आपको स्टोरी बताती हूँ हिंदी में. इसमें बोला गया है कि ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो कि अपने जो उसके आइडियल्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, उसके साथ वो समझौता नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी सोसाइटी हो, जैसे कैसे भी स्टेट हो. अब वो चाहता तो उस दिन उसका बर्थडे था तो वो उसको खाना नहीं मिला तो वो चोरी करके भी खा सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया क्योंकि उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ थी. उसने उनके साथ कभी भी समझौता नहीं किया, है ना. ओके, ये जो स्टोरी है 1942 और 43 के आसपास, मतलब आज़ादी से पहले ये लिखी गई है. और जो नरेटर है, जो कि नरेट कर रहा है स्टोरी, वो एक फ्रीडम फाइटर है, रेवोल्यूशनरी एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट है. और ऐसा वैसा क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं है, मतलब उसके हाई अचीवमेंट्स हैं. ओके, तो एक समय ऐसा था कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था. उसके बर्थडे वाले दिन उसको खाना नहीं मिला, उसको स्क्वायर मील नहीं मिला. स्क्वायर मील मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं मिला. इतना ही नहीं, और उसके साथ क्या क्या हुआ उस पर्टिकुलर डे, उसके लैंडलॉर्ड और उसके होटल कीपर जहाँ वो काम करता था होटल में, वहाँ पे उन लोगों ने उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाई, काफ़ी कुछ भला बुरा बोला क्योंकि वो पेमेंट्स नहीं दे सकता था, है ना. फिर उसको एक उसके फ्रेंड ने बोला था कि वो उसको लंच करवाएगा, लेकिन उसके फ्रेंड ने भी उसको लंच नहीं करवाया. फिर उसके कुछ जानने पहचानने वाले लोग थे, वो चाय पी रहे थे, लेकिन उसने उन लोगों ने उसको उन लोगों ने नहीं, एक ही था, एक उसका जान पहचान वाला था, उसने चाय भी नहीं पिलाई उसको, हालांकि वो उसके सामने चाय पीता रहा. फिर उसको सीआईडी वाले ने हरास किया, फिर उसको डेप्यूटी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ने भी परेशान किया, है ना. लेकिन वो जो था, जो ऑथर है, वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था. तो उसने हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला था तो उसका काफ़ी तो काम चल गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ. फिर उसने दो लोगों की इसमें तारीफ़ की है. एक तो सर्वेंट बॉय है जिसने उसको 2 आने दिए उस दिन, और और एक और लीडर गंगाधर की बात, यूथ लीडर गंगाधर की बात की गई है, जो कि उनका व्यवहार उसके साथ अच्छा था. ओके, बाद में ये जो स्टोरी है ये ऐसे दिखाते हैं कि नरेटर जो है वो खड़ा है एक पोस्टर के आगे, और एक आदमी की वो पिक्चर देख रहा है. एक पोस्टर है, उसमें एक आदमी है, वो जो आदमी है वो किसकी तरफ देख रहा है, स्काई स्क्रैपर होते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उनकी तरफ देख रहा है वो. उस पोस्टर में ऐसा दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो जंजीरों से बंधा हुआ है, अर्थ के साथ जंजीरों से बंधा हुआ है, लेकिन वो किसकी तरफ देख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ देख रहा है, और इस होप में देख रहा है कि कभी तो उसका भी दिन आएगा, है ना. हालांकि होपलेस कंडीशन है, अब वो चेन के साथ बंधा हुआ है ना, उस कुछ नहीं वो कर सकता, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव सी एक पिक्चर दिखाई गई है जिससे, है ना. अच्छा, और उस पर कैप्शन जो है वो लिखा गया है, इसको तो शायद हम लोग नहीं लिख पाएंगे. ऑल दो बाउंड टू द अर्थ बाय चेन्स, ही लुक्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस टू द स्प्लेंडिड प्रोग्रेस टू कम. दिस सीम्स टू बी द मैसेज ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी का मैसेज है. ओके, अब ये जो स्टोरी है ना, इसमें एक तीखा एक रियलिज़म है. रियलिज़म मतलब ये सच्चाई है दुनिया की, ऐसा होता है ना.
और इसमें टोन जो है शुरुआत से इस तरह की गई है। जो प्रोटोनिस्ट है, जो नरेटर है, वो बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। कन्फेशनल मोड में वो सब कुछ बता रहा है, जैसे कोई बता कन्फेशन करते हैं ना हम लोग, बता देते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वैसे ही वो सारी अपनी दिन की कहानी बता रहा है ना। और और सबसे बड़ी बहुत ही अजीब सी बात ये है कि वो हाईली आइडियलिस्ट हीरो है, बहुत ही अच्छा आदमी है, लड़का है, और वो जो है एम्प्टी स्टमक अपने बर्थडे पर वो खाली पेट सो जाता है ना। जबकि देखो ये भी एक आयरनी है कि जो मिडिल क्लास पीपल हैं उनको पेट भरा हुआ है उनका, फिर भी उनको चिंता लगी हुई है, वो अपनी चिंताओं में इतने मगन हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब खुशियाँ मना रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं और कल के बारे में सोच रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जैसे आमतौर पे होता है ना, आदमी के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो चिंता कर रहा है। और एक बच्चा जो है जिसका बर्थडे है वो खाली पेट सो गया है ना, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और बस एंड में यही है कि उसको बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील होती है और उसको लगता है कि जैसे सिगरेट का धुआं उसकी आंखों में जा रहा है, उसको आंखों में जलन पैदा कर रहा है, उसको चुभो रहा है वो। ये है हमारी बर्थडे स्टोरी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। थैंक यू सो मच।